Hello everyone. So I am starting a new course for last year TYBSc zoology student who have taken the zoology as a core subject. So basically I know that the material for the Mumbai University TYBSc is not that available, and people are not even teaching on YouTube. So this is like, if you know your friends who taken the TYBSc plain science, so do recommend this channel for them, these lectures, because I'm providing the syllabus of the Mumbai University, and it will be very beneficial, and this is a free of cost, so it will help you guys and your friends too much. So do stick to the syllabus, stick to the videos I'm explaining, because it will help you. So I'm going to start with the first chapter of the unit 1 paper 1, which is the principle of taxonomy. So basically the objective of this chapter is to introduce the learner to the taxonomy. What the taxonomy means: tax is arrangement and nomens means the rules and law. ओके तो बेसिकली जो टैक्सोनॉमी के अंडर जो भी एनिमल्स नेमिंग हो रहा है, अरेंज हो रहे हैं, वो एक रूल्स एंड प्रिंसिपल के साथ हो रहे हैं, एंड भी कुछ नहीं हो रहा है. देयर इज अ स्पेसिफिक रूल प्रिंसिपल दैट दे हैव टू फॉलो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थिंग्स हैव बीन डन. देन वी आर हैविंग सो द टैक्सोनॉमी, the science of naming, describing and classifying the organism. Basically in the taxonomy what happens, first they observe the animal, then they characterize them, they describe them, and then they classify which organism they are related to, etc. And after observing the whole organism, they give the name according to the characteristic and etc. and teach the principle of naming and grouping animals. So the objective is also to let the student know how the principle works in taxonomy, in naming and grouping the animals. The desired objective of this chapter from the student is to understand why the classification and naming, the nomenclature are important. So basically the most important thing arises in our mind, that why the taxonomy is important. So basically in taxonomy, for example, if a scientist or anybody who is interested in animals, just example, have saw a animal or insect he have never seen before, so he wondered like क्या इनने कुछ नया डिस्कवर किया है. So what he does, he will gonna search from the update section of the taxonomy ki, like this animals, like describing the characteristic and finding that it is already discovered or it is not. If it is not, so he will going to work on that. And अगर उसको मालूम पड़ गया कि हाँ ये डिस्कवर है क्या हुआ, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा उसके ऊपर. और अगर उसको है कि बहुत इंटरेस्ट है उस चीज़ पे, so he can also explore that animal, लाइक उसके आगे उसके वो रिसर्च आगे बढ़ा सकता है, उसके अंदर उसके बेनिफिट्स वगैरह. एंड बेसिकली द टैक्सोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारा का सारा सोर्स, अगर तुम एक लाइब्रेरी में जैसे एग्जांपल जा रहे हो, सारी बुक्स ऐसी ही पड़ी रहेगी, मतलब उसका कोई सही से वो रखी नहीं है, पता ही नहीं है, सब ऐसी ही पड़ी है, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा. अगर वही अरेंज की हुई है, डेटा कलेक्टेड है, कंप्यूटर में चीज़ें लिस्टेड है, तो इससे सब कुछ पता चलता है कि क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है. अगर वो सिस्टमैटिक वे में चल रही है तो हैंसफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये टैक्सोनॉमी की हेल्प से ही लोग डेटा कलेक्ट करते, क्योंकि वो यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन दे रहा है. सारे यूनिवर्स के अपने अर्थ के सारे साइंटिस्ट को हर चीज़ के बारे में मालूम है, क्या चीज़ पब्लिश हो चुकी है, उसके बाद जो भी चीज़ पब्लिश है, तो दे विल वर्क फर्दर ऑन दैट. लोग को स्टार्टिंग से कुछ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. हैंड्सफॉर मेडिसिन बन रहे हैं ना, इसीलिए पता चल रहा है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हम लोग उसे इंसुलिन बना सकते हैं. कैसे पता चला? क्योंकि लोग रिसर्च करते गए एंड देन कोई छोड़ा तो उसके आगे रिसर्च करते गए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एट द एंड वी आर लाइक गॉट टू सो मच डेप्थ कि मालूम पड़ा कि ये सारी चीज़ें भी होती है. दैट्स व्हाई टैक्सोनॉमी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड यहाँ पे सेकेंड पॉइंट इज टू लर्न द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, कि वो कैसे काम करता है. द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज बेसिकली many animals exist on the earth. Some are similar and others are very different. अगर मैं एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन को कंसिडर करूँ, they are very similar to each other because they are a one species. अगर मैं वहीं पे एक एंट को, एक इंसेक्ट को मैं अगर ह्यूमन के साथ कंपेयर करूँ, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है.
तो हम लोग को इतना बड़ा अर्थ है, उसमें लाइक 1.8 बिलियन और समवेयर इसके अंदर स्पीशीज़ है। सॉरी, आई एम सेइंग इट रॉन्ग, कोई और नंबर है, बट इतने सारे जो एनिमल्स है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, अगर उसको तुम नहीं करोगे प्लेस, उसको सिस्टमेटिकली नहीं रखोगे तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये तुमको चैप्टर, अगर तुमको ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है टैक्सोनॉमी, ये वो लोग के लिए जो फर्दर रिसर्च करते हैं, जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर तुमको इसलिए दिया गया कि तुमने जूलॉजी लिया है, तुमको एक ग्लिम्स देना है कि भाई मतलब आगे जाके इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस चैप्टर, तो वैसे ही अगर आगे जाके इंटरेस्टेड हो तो वो चीज़ लो। तो उस चीज़ में होता क्या है, आपको पहले थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा ना। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज ऑल्सो मैंशन, कि आपको पता चले कि एनिमल्स कैसे नेम किए जाते, कैसे फाइन किए जाते, कैसे लाइक क्लासीफाई किए जाते, उन लोग का हर चीज़ देखा जाता है। So that's why it is very important. So taxonomy, the science of grouping, classifying and ranking the organism. जो सिमिलर है उन लोग को ग्रुप करना है। लाइक एनिमल किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स है, प्लांट के अंदर प्लांट्स है, दे आर ग्रुपिंग इट, दे आर क्लासिफाइंग देम एंड रैंकिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब ये जो टैक्सोनॉमी है उसके अंदर इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। एक एनिमल को अगर मुझे कोई स्पीशीज मिला है तो मैं उसका देखेंगे पहले कि क्या कुछ है कि नहीं। अगर उसका एकदम नया स्पीशीज तुमको मिला है तो उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, सिमिलैरिटीज किसके साथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, अगर मैं जैसे एग्जांपल में देख, कहीं ना कहीं पे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कहीं ना कहीं पे सबका एक कॉमन एंसेस्टर है। लाइक एक कॉमन चीज़ है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ वो एक पॉइंट तो सिमिलर है ना सबका, देन इट इज डिवाइडेड। लेकिन उतना डीप एग्जांपल नहीं दे रही हूँ मैं, आई एम जस्ट गिविंग कि जैसे कि बहुत साल पहले ये जो ह्यूमन एंड चिंपैंजीज के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, दोनों का जो है कोई ना कोई तो सेम एंसेस्टर होगा ही, जिसके वजह से क्योंकि हम लोग के मतलब ह्यूमंस और चिंपैंजीज के जेनेटिक्स जीन्स भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हैंसफोर्थ दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, ये चीज़ पता है। एंड एडेप्टेशन क्यों होता है, बेसिकली बॉडी और द बिहेवियरल चेंज दैट हेल्प इन द सर्वाइवल बेटर इन द एनवायरनमेंट। ये बेसिकली कोई भी चीज़ को एनवायरनमेंट के अंदर बेटर सर्वाइव करने के लिए होता है। जैसे हम लोग के पास बहुत ज़्यादा फेमस एक एग्जांपल है, वो आई डोंट नो द प्लेस एग्जैक्टली बट इन अमेरिका और समवेयर एंड लाइक सो व्हाट हैपेंड है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिसके अंदर बेसिकली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो ट्रीज के ऊपर वाइट लेयर था जिसके ऊपर वाइट मॉथ्स रहती थी। मॉथ एक फ्लाइंग इंसेक्ट होता है और ब्लैक मॉथ होती थी। तो जो ब्लैक मॉथ होती थी वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती थी, उस मतलब जो भी उसको खाता था उसके ऊपर, बर्ड के ऊपर, तो वो उसको खा लेता था, तो उसका पॉपुलेशन तो कम हो जाता था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया देन पॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड, सो जो वाइट लेयर ऑन द ट्री इट टर्न इनटू ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक वो टर्न नहीं हुआ, बेसिकली वहाँ पे पॉल्यूशन डिपॉजिट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्लैक मॉथ है इट्स लेस विजिबल एज कम्पेयर टू द वाइट मॉथ, वो ज़्यादा विजिबल होने लगी, दैट्स वाई उसका पॉपुलेशन ड्रॉप हुआ। और यहाँ पे फिर देखा गया कि कुछ इंसेक्ट ऐसी होने लगी जो वाइट और ब्लैक दोनों उसके अंदर थे स्पॉट्स। इसका मतलब क्या, वो अडेप्ट हो रही थी, वो म्यूटेट हो रही थी, वो अडेप्टेशन कर रही थी फॉर व्हाट, फॉर बेटर सर्वाइवल। और क्लासीफाई करने में एक और चीज़, दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हैबिटाट एंड हैबिटाट लाइक वेयर दे आर लिविंग, वो कौन से एरिया में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं कि पहाड़ में रहते हैं, ठंडी एरिया में रहते हैं। और हैबिटेट लाइक व्हाट दे आर ईटिंग, हाउ दे आर स्टेइंग एक्सेट्रा। एंड देन वी आर कमिंग टू द ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग बींग्स आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉल टू द लार्जेस्ट, मतलब जो भी अर्थ के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से टिल टू डेट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल का भी है या वो बहुत सारे सेल से मिलके वो एकदम डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल वो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही लेवल नहीं है, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कोई सिंगल सेल है, कोई थोड़े बहुत सेल और मिला के, कोई टिश्यू है, कोई ऑर्गन है,
लेकिन पूरा डेवलप्ड नहीं है, लेकिन कोई ऑर्गन सिस्टम के साथ, हर चीज़ के साथ डेवलप्ड है। दैट्स वाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अर्थ के अंदर। लिविंग बीइंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम स्मॉल टू लार्जर, एक सेल से बहुत सारे सेल, ठीक है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, परफॉर्म एक्टिविटीज मल्टी सेल्यूलर बॉडीज के अंदर भी होती है और सिंगल सेल। इसमें ये बोल रहा है बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, जो भी चीज़ लाइव है उसके अंदर सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल से ही सब कुछ बना है, ठीक है। बॉडी हर चीज़ सेल से बनी है। तो इसके अंदर मल्टी सेल्यूलर में भी सेल है और इसके अंदर यूनिसेल्यूलर के अंदर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी है। दोनों में सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर द सेकेंड थिंग इज द सेल फॉर्म द टिश्यू स्पेशलाइज ग्रुप। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं एक साथ तो टिश्यू बनाते हैं। स्पेशलाइज ग्रुप बोले तो बेसिकली जैसे कि लंग्स का टिश्यू अलग होता है, स्किन का टिश्यू अलग होता है, कनेक्टिव टिश्यू अलग होता है, एपिथेलियल टिश्यू अलग होता है। थोड़ा सा कनेक्टिव क्या होता है, लूज्ड होता है, जिसके अंदर ब्लड वगैरह फ्लूइड इज मोर। एपिथेलियल में क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। स्किन का देखो तुम लोग कॉम्पैक्टली पैक है। तो स्पेशलाइज ग्रुप होते हैं, उन लोग के फंक्शन के अकॉर्डिंग उन लोग का होता है कैसे रहेंगे। देन टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, परफॉर्म फंक्शन। हार्ट का फंक्शन इज अ पंपिंग एंड किडनी का फंक्शन इज प्योरीफाइंग, सबका फंक्शन अलग है, ठीक है। लेकिन ये टिश्यू बहुत सारे मिलके ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं, जो ऑर्गन्स है उतने ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम क्या, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉडी टू कीप द स्टेबल, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तो थिंग्स विल कोलैप्स, ठीक है। सबको एक रिदम में, एग्जाम्पल ओके, इफ एनीबडी हैज अ किडनी फेलियर और लाइक सम पैरालाइज अटैक, अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो वही इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। किडनी फेलियर बोला तो यू कांट सर्वाइव विदाउट डायलिसिस, अरे बहुत लंबा प्रोसेस है। तो एक चीज़ कोलैप्स होगी ना तो 100% श्योर दैट अनदर थिंग इज गोइंग टू कोलैप्स। व्हाई? बिकॉज एक चीज़ से प्रेशर आ रही तो बाकी सारी चीज़ों पर भी गई ना, दैट्स द थिंग। एंड बाकी सारी चीज़ें नहीं कर सकती है, सबके साथ स्पेशलाइज सेल्स बने हुए, स्पेशलाइज फंक्शन है। अचानक से तुम कुछ भी नहीं अडेप्ट कर सकते, समझ रहे हो। अचानक से कुछ नहीं होता है। अगर अचानक से अगर तुम्हारा कुछ हो गया तो बाकी सारी चीज़ें नहीं अडेप्ट कर सकती, दैट्स द थिंग। एंड देन दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी कम इन टू then unicellularity, colonization and multicellularity। देखो यूनिसेल्युलरिटी मतलब यूनि मतलब बोला तो एक, सेल्युलर मतलब सेल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, अलगे हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सम आर पैथोजेनिक एंड सम आर डोंट नो, नॉर्मल भी है। सो दिस आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेल्युलरिटी के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। सेल टाइप क्या होगा, प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, नो न्यूक्लियस, आई विल एक्सप्लेन दिस, एंड यूकैरियोटिक विद न्यूक्लियस। बेसिकली प्रोकैरियोटिक बोला, नो न्यूक्लियस बोला तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नो न्यूक्लियस, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ जेनेटिक मटेरियल। नो न्यूक्लियस बोला तो बेसिकली इसके अंदर कॉइल्ड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करे। न्यूक्लियस एमी सेल में घूम रहा होता है, उसके अंदर प्लाज्मिड भी होता है जो एक्ट लाइक अ जेनेटिक मटेरियल, बट जो रेजिस्टेंस बनाता है बॉडी के अंदर। बट न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा नहीं, न्यूक्लियस है बट वो अच्छे से पैक्ड नहीं है, वो एवी घूम रहा है, ठीक है। और यूकैरियोटिक के अंदर बाकायदा उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ए वेरी ऑर्गेनाइज सेल हैज, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रू न्यूक्लियस, ओके। देन फंक्शन इज व्हाट डन विद इन वन सेल। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, देयर इज अ वन room in which there is a washroom, in which there is a kitchen and you have to sleep in that room। ये सारी चीजें वो एक रूम में हो रही है, ठीक है। एक ही रूम के अंदर सारे फंक्शन हो रहे हैं। दैट इज जस्ट एग्जाम्पल, दैट्स अ यूनिसेल्युलर के अंदर एक ही सेल के अंदर सब कुछ है। एंड मल्टी सेल्युलर के अंदर क्या हुआ फिर, उसके अंदर पूरा BHK मतलब पूरा का फ्लैट है, उसमें हॉल है, उसमें किचन है, उसमें वॉशरूम अलग है, उसमें सोने का अलग है,
दैट्स आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक वेरी आप याद रख सकते हो वैसा एग्जाम्पल है. देन जो प्रोकैरियोटिक होता है बेसिकली जो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है आर वेरी ओल्ड. दे आर 3.8 बिलियन ईयर्स अगो. ये इन्हीं का राज होता था उतने साल पहले. ये वहाँ पे कोई टिश्यू नहीं था, वहाँ पे कोई यूकारियोटिक सेल नहीं था, वहाँ पे सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर थे. मतलब यूकारियोटिक थे, मैं ऐसा नहीं बोल रही नहीं थे, बट सिंगल सेल यूनिसेल्युलर सिंगल सेल का वहाँ पे था. ठीक है, नो टिश्यू नहीं, वो कुछ नहीं, नॉर्मल सब कुछ सिंपल. देन वी हैव द कोलोनाइजेशन. कोलोनाइजेशन के अंदर क्या, मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, फॉर्म कॉलोनीज. बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक साथ आए और वो रहने लगे और उन लोगों ने कॉलोनीज बनाई. एक जैसे होंगे तो एक साथ रहने लगे. और इसमें बेनिफिट क्या होता है कॉलोनाइजेशन में रहने में, इसमें सर्वाइवल रेट बढ़ता है, डिफेंस मतलब वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड स्ट्रॉन्गर प्रे अटैक मतलब खाने को भी बहुत अच्छे से वो लोग कैप्चर कर लेते हैं. एंड कॉलोनीज में हैव सिमिलर सेल्स एंड स्पेशलाइज सेल्स. सिमिलर सेल्स बोले तो सब एक जैसे ही, मतलब एक ही समझो फंगस है एक ही टाइप का, उसी ने मतलब रिप्रोडक्शन के उसी के कॉलोनीज बन रहे ग्रुप, वो सब सिमिलर सेल्स. ठीक है, उसमें से कोई होता है जो स्पेशलाइज सेल्स, मतलब इसमें क्या है बहुत आगे जाके थोड़ा डेवलपमेंट मतलब म्यूटेशन अडेप्टेशन इवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स बनने लगे जो क्या बोल रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स. मतलब क्या बेसिकली एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का दे रही हूँ, जैसे कि अलगे हो गया और ये फंगस हो गया, एक साथ लाइकन बना लिए. वो अलगे बोलता है कि लाइक वो फोटोसिंथेसिस करके फूड ले रहा है, बट यहाँ पे फंगस का क्या है वाटर लेके आओ नीचे से. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द म्यूचुअलिज्म. यहाँ पे क्या हो रहा है डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है. ठीक है, सबका अपना अपना काम है, इससे वर्कलोड भी कम होता है एंड थिंग्स वर्क्स मोर इजियर. एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर भी है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ऐसे ही इंगल्फ कर दिया बट देखा बॉडी ने कि इट इज़ हेल्पिंग, उसको भी एक शेल्टर मिल गया, अपने बॉडी को भी एनर्जी बनाने के लिए ईजी हो गया, तो दे आर डूइंग द म्यूचुअलिज्म. देखो इसके बाद इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA है, इसलिए लोग बोलते एंड इट इज़ लाइक साइंटिफिकली मे बी प्रूवन. तो नाउ कॉलोनीज बिहेव लाइक एन ऑर्गेनिज्म सिस्टम. पूरा कोऑर्डिनेशन है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है इसके अंदर, कॉलोनीज के अंदर. एग्जाम्पल स्पॉन्जेस हो गया, कोलेंट्रेट हो गया, ग्रीन अलगे हो गया, कॉलोनीज में रहते हैं. इफ अ सेल सेपरेट इट कैन फॉर्म अ न्यू सेल. क्योंकि बेसिकली वी नो दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. बोलो क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, इट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, वो एक दिन में इतना सारा दे देगा. ह्यूमंस इतना कॉम्प्लेक्स होता है करके उसको 9 महीने लग जाते हैं, पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कोई ज़रूरत नहीं है, एंड दे आर हैविंग सच अ सिंपल बॉडी, सो थिंग्स वर्क्स वेरी फास्ट देयर. नाउ वी हैव द मल्टीसेल्युलैरिटी. देखो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स लाइक प्लांट एनिमल्स हायर एनिमल्स लाइक अस. इट्स टॉकिंग अबाउट आवर जोन. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम द कॉलोनीज ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक, देखो पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, फिर उसके बाद लोगों ने कॉलोनीज बनाए, इतना अच्छा रिप्रोडक्शन रेट था, फिर उसमें आगे जाके अडेप्ट होते होते उसमें ऐसा हुआ कि भाई अपने अपने फंक्शंस थोड़े बहुत डिवाइड कर लेते हैं, आसान हो जाएगा वो. उसके बाद ऐसा हो गया कि उसमें बहुत सारे सेल्स कि भाई अब फंक्शन अब अलग अलग क्या रहना है, एक ही बॉडी में रहना है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं. जस्ट एग्जाम्पल. एंड देन यहाँ पर अपना हायर प्लांट एनिमल्स, एंड देन उसमें ऐसा रहता है कि भाई अब तो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स बनाने. एडवांटेज क्या है मल्टीसेल्युलैरिटी का, बेसिकली कि लार्जर साइज क्या होता है इसमें, बड़ा साइज हो जाता है. डिवीजन ऑफ लेबर, सारा काम हल्का हो जाता है. अब ये सारी चीज़ों में डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट वर्क, सब अपना अपना काम करेंगे. लाइक ऑर्गन बन गया तो ऑर्गन के अपने अपने काम है. फिर बेटर सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, फूड एक्सेस, मूवमेंट. एवोल्यूशनरी पाथवे बेसिकली यहाँ पे वही है कि स्टार्टिंग यूनिसेल्युलर सेल से, फिर वो कॉलोनीज बनाएगा, फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एंड देन स्पेशलाइज सेल्स बनेगा. ठीक है, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, स्पेशलाइज सेल्स के साथ है लाइक ऑर्गन्स वगैरह. देखो अब यहाँ पे थ्योरी, कॉलोनियल थ्योरी, एवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यही जो ऊपर बताया था यही है. देखो ये जो है
मेटाजोन बोले तो इट इज़ मल्टी सेलुलर एनिमल्स मेड ऑफ द मैनी स्पेशलाइज सेल्स। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यही जो होते हैं एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स मेड ऑफ द स्पेशलाइज सेल्स। ओके, evolved from the colonial flagellates or embryos protozoa। flagellates basically यहाँ पे एग्जाम्पल है वॉल्व, ये प्रोटोजोआ बोला तो सिंगल सेल, अमोएबोड अमीबा, फ्लैजिलेटेड जिसमें मूवमेंट के लिए हेल्प होता है बॉडी, ठीक है, आगे बढ़ती है, उसकी बात हो रही है फ्लैजिलेटेड। यहाँ पे एग्जाम्पल में वॉल्विक्स है, इसमें स्पेशलाइज सेल्स प्लस कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है कि बॉडी के जो आउटर सेल्स है वो फ्लैजिलेटेड है, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो इनर सेल्स है वो अलग है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और अलग है जो डाइजेशन वगैरह भी करते हैं, ठीक है, वो अलग सेल्स है। इसके पास अपने अलग अलग सेल्स है, अलग अलग काम के लिए। देन वी हैव द सेल डिवीजन, मतलब इनटू सेल डिवाइड होता है इनटू सोमैटिक सेल्स एंड द जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स बोला तो क्या, बेसिकली जो बॉडी के हर एक डिफरेंट पार्ट को बनाएंगे, वो हर एक चीज बना सकते हैं, बट गैमेट्स नहीं, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे लेके जाने चीज वो नहीं बना सकते। एंड वी हैव द जर्म सेल विच विल गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली द गैमेट्स, वो उसके अलावा कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। देखो, बॉडी चेंज फ्रॉम होलोस्फीयर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, ठीक है, टू डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये पहले कहाँ था, अब कहाँ है, यहाँ पे इतना डेवलप्ड हो चुका है। देखो, दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ द एनिमल एम्ब्रियोज एक्सेप्ट द स्पॉन्जी। स्पॉन्जी के अंदर इतना भी नहीं हो सका है, अभी तक नहीं हो सका है बेचारा, बट दिस फॉर्म्स द बेसिक। एक्टोडर्म एंडोडर्म से बेसिक एम्ब्रियो तो बन जाता है ना, स्टार्टिंग ऑफ, it is only what it is saying. And then level of organization, living organism shows different level of organization। देखो, so level of organization, living organism shows different level of organization। सबके पास सब कुछ नहीं है भाई, स्टार्टिंग से सब कुछ नहीं एक साथ आ गया था, इसके लिए बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है। पहले बेसिकली सब किसी के पास सेल था, तो किसी के पास की सेल्स बहुत सारे मिलके टिश्यू बनाए बाद में, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, नाइडेरिया के पास बहुत सारे सेल्स बन गए, नाइडेरिया में टिश्यू बनाने लग गए। उसके बाद ऑर्गन आ गया हम लोग के बाद, उसके बाद बहुत वो इनकम्प्लीट बॉडी है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बना दिए, जैसे कि अपना अर्थवॉर्म में भी है। एंड देन ऑर्गेनिज्म, इससे पूरा अच्छा खासा ऑर्गेनिज्म, इसमें भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं बोलेंगे ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट इज अ प्रॉपर परफेक्ट ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे द टाइप ऑफ लेवल्स, ए सेल्यूलर, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। ए सेल्यूलर बोला तो इसमें सेल भी नहीं है बेचारे के पास। आप लोग बोलते हो आपके पास बहुत कुछ नहीं है, बट इसके पास तो सेल भी नहीं है, इसको देख के मोटिवेट होना चाहिए। सेल भी नहीं है इसके पास, तो ये क्या हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, ठीक है, जो होस्ट के बॉडी में जाके ही लाइव होता है, वरना वो लाइव नहीं होता, वो बीच के अंदर होता है, वो मतलब यू कैन से ना यहाँ का ना वहाँ का, बीच के लाइन का, लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बीच का होता है। होस्ट मिलता है उसके बाद वो लिविंग होता है, ठीक है। तो जो ए सेल्यूलर होता है वो, उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसके पास ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, ठीक है। उसके पास लाइक वायरस हो गया हम लोग का, फिर प्लाज्मिड हो गया, प्रायोन्स हो गया, ये सब के पास नहीं होता है। लोग के पास आरएनए है या कभी डीएनए है, बट आरएनए ही मोस्टली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नॉट लिविंग ऑन देयर ओन, डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन, अपने में नहीं हो सकता है, मतलब अपने आप ही नहीं हो सकता है, इट नीड समथिंग फॉर न्यूट्रिशन। कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ, एक साथ तो कुछ नहीं होगा दोनों। फिर यूज होस्ट एंजाइम एंड राइबोसोम फॉर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एवरीथिंग एल्स। देन वी कम इनटू द सेल्यूलर, जिसके पास सेल है, बेस्ड ऑन द सेल थ्योरी, जो ऊपर देखा हम लोग ने, जिसे नहीं, cell theory is different. Based on the cell theory, all living things made of cells. Cells are the basic unit of life. The found in the simple multicellular organism like sponges. Cells are loosely arranged, not true tissue. Example of specialized cells are RBC, WBC, neurons, bone cells. ये सब क्या है, ये सब cells है। Then we have the tissue.
Tissue is a group of a similar cells doing a common function. Human have 4 main tissues. Epithelial tissue हो गया, connective tissue हो गया, muscle tissue हो गया, nerve tissue हो गया. Human के अंदर ही सारे tissues है, ठीक है, इतने टाइप के. And first true tissue level एनिमल इज अ नाइडेरिया और कोलेंट्रेट, जिसके पास टिश्यू लेवल पहली बार जो ऑर्गेनिज्म के पास आया वो नाइडेरिया का था. जिसके पास सेल था वो प्रोटिस्टा के पास, नहीं, पॉरीफेरा था शायद से. एंड देन वी कम इनटू दिस. हाँ, लेकिन इसके अंदर ना बॉडी रेडियल सिमेट्री हो सकती है, 2 जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर टिश्यू तक आ गया था, ठीक है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म. एंड यहाँ पे रेडियल सिमेट्री बोले तो वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो सकती है इक्वली. एक पॉइंट है सर्कल, जैसे हम लोग ने चक्का देखा है, टायर नहीं, व्हील देखा है साइकिल का, उसके बीच में ऐसा होता है, उसके बाद इतने सारे ऐसे होते, वो सब इक्वली डिवाइड होते हैं, वैसा बोल रहा है सेंटर से. उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे, जितना भी होगा इक्वल होगा. देन वी हैव द ऑर्गन. तो ऑर्गन लेवल के अंदर ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर लाइक हार्ट, ब्रेन, स्किन. फर्स्ट सीन इन द प्लेटीहेल्मिन्थस जो था फ्लैट वॉर्म, वो पहली बार देखा गया कि उसके अंदर ऑर्गन लेवल आया है. एंड देयर ट्रिप्लोब्लास्ट की मतलब यहाँ पर तो टिश्यू में डिप्लोब्लास्ट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, यहाँ पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म आ गया ट्रिप्लोब्लास्ट में. ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेवरल ऑर्गन्स फॉर्म सिस्टम विद द स्पेसिफिक फंक्शन लाइक डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सेट्रा. फर्स्ट सीन इन द एनिलिडा, ये एनिलिडा में सबसे पहले देखा गया, ये नाइडेरिया में सबसे पहले देखा गया, ये प्लेटीहेल्मिन्थस में सबसे पहले देखा गया, ठीक है. ह्यूमन हैव 11 ऑर्गन सिस्टम, 11 है ह्यूमंस के पास. सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इम्यून है, इंटीग्यूमेंटरी है, एंड मस्कुलर है, नर्वस है, रिप्रोडक्टिव है, एंड रेस्पिरेटरी और स्केलेटन है. इतने सारे ह्यूमंस के पास ऑर्गन सिस्टम्स है, समझ रहे हो. इट्स अ वास्ट थिंग. नाउ द टॉपिक कम्स द सिमेट्री. अब हम लोग ने ये सब देख लिया कि अब ये सेलुलर क्या होता है, देन मल्टी सेलुलर क्या होता है, सेल थ्योरी देख लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने देख लिया. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्री. सिमेट्री क्या है, बेसिकली कोई भी चीज को इक्वली डिवाइड करना, ठीक है, इट्स अ सिमेट्री. बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री इज सिमेट्री द बॉडी पार्ट अरेंज इन अ इक्वल हाफ अराउंड अ प्लेन एक्सिस, ठीक है. मीन साइज, अगर तुम उसको डिवाइड करोगे बॉडी को 2 पार्ट में तो उसका मीन साइज होगा 2 पार्ट में, जितने पार्ट में तुमको चाहिए वो सब इक्वल होंगे. एंड अरेंजमेंट आर बैलेंस्ड, अगर नहीं भी करोगे तो देयर अरेंजमेंट आर बैलेंस्ड. यूज एज अ बेसिस फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है. सम एनिमल शोज नो सिमेट्री, एसिमेट्री, किसी में सिमेट्री नहीं होता, जैसे अलगे हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, उसमें सिमेट्री नाम की चीज है ही नहीं. सो बेसिकली सिमेट्री आर ऑफ द 3 टाइप्स, और भी है बट स्पेसिफिकली दे आर 3 टाइप्स. एसिमेट्री, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, अमीबा एंड स्पॉन्जेस, लाइक अमीबा हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो सकता है. देन रेडियली सिमेट्री, बॉडी पार्ट अरेंज अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, डिवाइड इनटू मैनी सिमिलर हाफ्स. स्टारफिश हो गया, जेलीफिश हो गया. बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग का ये स्टारफिश हो गया, ठीक है, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है, 1 2 3 4 5. इन्होंने ड्रॉ ऐसा किया लेकिन वो इक्वल हाफ में ना, ये सेंटर से इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगा. इसलिए ये क्या होता है, रेडियली सिमेट्री होता है. ये तुम कितने भी पार्ट कर सकते हो सेंटर से, वो इक्वल होंगे लेकिन, ठीक है. और बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल राइट लेफ्ट हाफ्स थ्रू 1 प्लेन. मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसको तुम बीच में से खड़ा करो, ह्यूमन बॉडी को जैसे एग्जांपल, बीच में से अगर तुम उसको काटोगे भी तो उसका इक्वल हाफ आएगा, राइट अलग इक्वल आएगा, लेफ्ट इक्वल आएगा, ठीक है. इंसेक्ट हो गया, वॉर्म का मेरे को मालूम नहीं, इंसेक्ट हो सकता है, ह्यूमंस हो सकता है. सो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ सिमेट्री, कि बेसिकली सिमेट्री का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बता दो कि क्या था, मतलब इसका समरी,
ये जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े, मैं सब कट शॉर्ट में बता रही हूँ कि मतलब तुम लोगों को खाली समझ में आना चाहिए, ऐसा लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि लाइक जितना ज़्यादा सिंपल नोट्स रहेगा इतना ज़्यादा तुम अंडरस्टैंड जल्दी कर पाओगे। तो एसिमेट्री का बेसिकली क्या था, जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है इरेगुलर होता है और उसको एसिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और जो रेडियल सिमेट्री क्या होता है, सूटेड फॉर सोसाइल एनिमल्स, जैसे कि जो बहुत धीरे चलते हैं या जो एक जगह टिके रहते हैं, वो लोग के काम के लिए होता है। जिस स्टारफिश जो है वो मतलब तुम एक सेंटर जो अपना बीच का होता है, एक स्टारफिश बन गया, उसका जो बीच का होता है वहां से तुम 5 इक्वल हाफ कर लोगे, ऐसा मतलब तुम कितने भी इक्वल हाफ करोगे लेकिन तुम्हारे इक्वल ही रहेंगे, ठीक है, सारे पार्ट्स। देन बायलैटरल मतलब मोस्ट एडवांस बेटर लोकोमोशन फूड कैप्चर, बेसिकली कि एक ऑर्गेनिज्म को तुम 2 इक्वल हाफ में अच्छे से डिवाइड कर दोगे। ये एकदम मॉडिफाइड वाला है, ठीक है। रेडियल से थोड़ा डेवलप्ड, वो ज़्यादा ही डेवलप्ड है, एडवांस है, क्योंकि इसके अंदर बेटर लोकोमोशन होता है, फूड कैप्चर से कर पाता है, प्रेडेटर अवॉइडेंस होता है और मेट फाइंडिंग होता है, लाइक फ्रॉग वगैरह ये सब, ठीक है। तो वो सब, ये अभी ह्यूमन का एग्जांपल दे रही हूँ, इज अ बायलैटरल, सॉरी हाँ बायलैटरल है, इक्वल हाफ में 2 राइट लेफ्ट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ सिमेट्री, वही तीनों का समरी था। देन करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सीलोम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी को सीलोम बोला जाता है, ठीक है। जो बॉडी कैविटी होती है उसको सीलोम बोलते हैं। तो यहाँ बेसिकली एक जाइगोट है, ठीक है। तो बेसिकली एक जाइगोट है, ठीक है। अब वो बना एक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना, उसके बाद वो डेवलप्ड होके क्या करेगा, जैसे एग्जांपल वो एक्टोडम, एम्ब्रियो के अंदर एंडोडम और एक्टोडम तो रहता ही है, बट वी आर जस्ट कंसीडरिंग एक्टोडम भी है यहाँ पर। ये जो है ये उसका ये गट ले तुमने गट ले लिया, ठीक है, गट। और ये एक नॉर्मल सा तुम ले रहे हो, हाँ, कोई भी टिश्यू बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो, यहाँ पे तुमको ये सीलोम मिलेगा। सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी होता है। तो ये तुम्हारा एक्टोडम है, ये तुम्हारा हो गया मीजोडम। रुको, कलरफुल पेन्स आई एम गोइंग टू यूज, दिस इज योर मीजोडम, मीजोडम है। और ये जो तुम्हारा है इधर, ये जो इसकी बात कर रही थी मैं, ये जो गट के ऊपर का जो लाइनिंग है, गट का आउटर लाइनिंग इज व्हाट, एंडोडम, ठीक है, ठीक है, इज एन एंडोडम। तो ये वापस यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये हो गया हम लोग का एक्टोडम, एक्टोडर्म, ये हो गया गट, ये हो गया एंडोडम। जो बीच का है दिस इज बिकम मीजोडम। ये जो मीजोडम वाला पार्ट है ना, इतना सारा ये जो पार्ट है एंडो उसके अंदर, इसी के पीछे बनता है ये सीलोम कैविटी। ये जो कैविटी होता है ये मीजोडम से बनता है, ठीक है, मीजोडम में ही बनता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी लाइन बाय द मीजोडम, मीजोडम से वो कवर होती है, ऊपर उसके मीजोडम से लाइन की हुई होती है, ठीक है। एंडोडम से टच कर सकती है या मीजोडम से लाइन की भी होती है, अच्छे से कवर होती है। फ्लूइड फिल्ड बोले तो इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसकी वजह से ना ऑर्गन को, कोई भी ऑर्गन होता है उसको सपोर्ट मिलता है, स्पॉन्ज होता है, उसको शॉक वॉक नहीं लगता है। ये बॉडी के प्रोटेक्शन में काम होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड वगैरह फिल्ड होता है, समझ रहे हो, कोई शॉक नहीं लग रहा है। लंग्स के दोनों लंग्स का आउटर लेयर इनर लेयर के बीच में फ्लूइड होता है, ये सारी फ्लूइड्स को वी आर कंसिडरिंग कोइलम, ठीक है। और भी ये एम्प्टी स्पेस पे होता है, जिससे बॉडी को सपोर्ट मिलता है और वो हेल्दी रहती है। फाउंड इन द ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल, जो 3 जर्म लेयर्स के अंदर होता है, ठीक है, एंडोडम, एक्टोडम, मीजोडम के अंदर। कंटेन इंटरनल ऑर्गन्स लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बोला ना, ये गट का एलिमेंट्री कनाल पूरा ले लो, मुंह से लेके एक्सक्रीटा तक ले लो, हर जगह तुमको ये सीलोमेट मिलेगा, ठीक है, सीलोम। यहाँ पे 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसके पास सीलोम होता है, किसी के पास नहीं होता है, और किसी के पास फॉल्स सीलोम होता है। सीलोम नहीं होता है बोले तो उसके पास होता ही नहीं है कैविटी। वो एग्जाम्पल फ्लैटवर्म हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गया,
कॉकरोच, इंसेक्ट्स वगैरह में शायद, एंड कोडाटा, ये सब के अंदर तुमको सीलोम मिलेगा नहीं। जिसके अंदर सीलोम मिलेगा वही जो तुमको पता है बॉडी कैविटी, उसको सीलोम बोलते हैं। एनिमल्स हो गया, एनिलिडा हो गया, हम लोग जैसे एनिमल्स हो गए, एंड एनिमल विद द फॉल्स सीलोम जिसमें सूडो सीलोम मिलता है। सूडो सीलोम बोले तो पता है क्या, जिसके अंदर बेसिकली ये जैसे हम लोग का ये था, ये एक्टोडर्म, ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक्टोडर्म। इसके अंदर बना लिए हम लोग ने एंडोडर्म। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतनी सारी जगह है ना, इतनी सारा मीजोडर्म बन सकता है, पर यहाँ पर क्या होगा पता है, मीजोडर्म का ऐसा पाउच बन जाएगा। यहाँ सीलोमेट है, जो कैविटी यहाँ पे सीलोमेट है, तो यहाँ पे मीजोडर्म से हम लोग लाइन नहीं कर रहे, ये जो है ये मीजोडर्म है, और ये जो है डॉट डॉट, ये सब क्या है, कोइलम है, सीलम। तो यहाँ पे लाइन थोड़ी ना करा जा रहा है मीजोडर्म से, ये तो फॉल्स हो गया, मीजोडर्म से लाइन ही नहीं हो रहा है। जो सूडो सीलोमेट होता है वो मीजोडर्म को लाइन नहीं करता है, बिना मतलब मीजोडर्म का पाउच अलग बन चुका होता है। ये ऐसी है, एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म को लाइन करता है ये सीलोमेट, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल सीलोमेट, ठीक है, नाम का सीलोमेट है। एंड बट हाँ, ये फिर भी काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द सीलोम। नाउ अब जो सीलोम है, फॉल सीलोम मालूम पड़ गया क्या बोला था मैंने, फॉल सीलोम बोला तो ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब ए सीलोम बोला तो लो में सीलोम ही नहीं है, ठीक है, अता पता ही नहीं है। अगर मैंने बोला सीलोम है, ठीक है, मैंने अगर बोला सीलोमेट, तो उसके अंदर क्या है, सीलोम तो है। अब यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे दो टाइप के सीलोम है, ठीक है। यहाँ पे जो सीलोम है हम लोग का, ये जो सीलोम है वो दो टाइप का है। एक है वो ये शिजोसीलोम, ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं इसको, शिजोकोइल ऐसा कुछ है, और एंटर कोयली, ये दो टाइप का। कोलम क्या है, दो टाइप का, शिजोकोलम और एंटीकोलम, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। ये जो इसके अंदर जो शिजोसोलम जो कोलम होता है ना, उसके अंदर पता है क्या होता है कि ये जो मैंने बताया तुमको, जो बाहर का क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, अंदर का क्या हो गया, एंडोडर्म। ये मैं एलिमेंट्री कनाल का बता रही हूँ, ठीक है, मतलब तुम कहीं पे भी ले लो बॉडी के अंदर, लंग्स के, हार्ट के, कहीं पे भी ले लो, हर जगह ही प्रेजेंट है, हर जगह प्रोटेक्शन की जरूरत है, जहाँ पे भी ऑर्गन है हर जगह वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोडर्म हो गया, ये हो गया एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म बचा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मीजोडर्म का जो लेयर होता है ना, ये पूरा मीजोडर्म होता है ना, वो क्या होगा, वो मीजोडर्म डिवाइड होगा, थोड़ा मीजोडर्म क्या होगा, इधर रहेगा, थोड़ा एक्टोडर्म के पास रहेगा मीजोडर्म, थोड़ा सा एंडोडर्म के पास रहेगा ये मीजोडर्म, रेड से क्या है, मीजोडर्म, ठीक है। और उसके बीच में क्या होगा, उसके बीच में होगा सीलोम, क्या होगा उसके बीच में, कैविटी, बॉडी कैविटी, सीलोम। वापस से समझो, ये मैं बात कर रही हूँ शिजोकोली के अंदर क्या होगा, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, ब्लैक वाला एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बीच में क्या है, सीलोम है। ये जो ब्लू कलर का है, नहीं, ये जो रेड कलर का है, ये जो मीजोडर्म है वो डिवाइड हो गया, आधा पार्ट गया, थोड़ा सा गया एक्टोडर्म के, थोड़ा सा गया एंडोडर्म के, दोनों के बीच में क्या, सीलोम है, बॉडी कैविटी है, मतलब क्या, पूरी तरीके से लाइन बाय मीजोडर्म के बीच में, उसको कहीं से एक्टोडर्म वगैरह को टच नहीं करा, मीजोडर्म के बीच में, उसको बोलेंगे शिजोसीलोम, ठीक है। ये शिजोसीलोम का एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल है जो इसका है, व्हाट वी कॉल इट एज, जो है इसका एंटरकोल सेल होता है, जो टिश्यू होता है, ठीक है। टिश्यू के अंदर क्या होता है, ये होता है एक इन्वेजिनेशन, अंदर, अगर टिश्यू अंदर फोल्ड हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, अगर टिश्यू अंदर फोल्ड हुआ उसको इन्वेजिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर टिश्यू बाहर गया, बाहर फोल्ड हुआ, एक टिश्यू जो अंदर फोल्ड हो रहा है इन्वेजिनेशन, अगर बाहर हुआ तो उसको बोलेंगे इवेजिनेशन। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो यहाँ पर वापस से मैं तुमको कट कर समझा रही हूँ, ठीक है, इजी पड़ेगा, एलिमेंट्री कनाल का बता रही हूँ मैं। ये होगा हम लोग का एक्टोडर्म, ये होगा हम लोग का एंडोडर्म,
बोले तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में होगा गट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि जो गट है, गट का ये जो टिश्यू है, एंडोडर्म का टिश्यू है, और जो गट का टिश्यू है, ये गट का टिश्यू जो वो बाहर में जाएगा, ठीक है। वो बाहर क्या होगा, इवेजिनेशन होगा, वो इवेजिनेशन करेगा, ठीक है। गट का टिश्यू बाहर इवेजिनेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ से जो गट का है, एंडोडर्म के अंदर जो गट का टिश्यू है उसकी बात कर रही हूँ, एंडोडर्म के अंदर जो गट का टिश्यू वो इवेजिनेशन करेगा, वो यहाँ से भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैविटी क्रिएट होगा, ये कैविटी कोइलोमेट होगा। तो बाद में जाके क्या हो जाएगा, बाद में जो तुम लोग को स्ट्रक्चर दिखता है कोइलोमेट के अंदर कि यहाँ पे सर्कल है, ऐसा करके स्ट्रक्चर दिखता है ना, वो ये गट का टिश्यू है। जो गट का टिश्यू इवेजिनेशन किया, गट का टिश्यू इवेजिनेशन करके बाहर डेवलप्ड हुआ, तो ये बाहर ऐसे चले गया, इसके बीच में कैविटी, तो यहाँ पर हो गया दिस सीलोमेट हो गया। तो वो आगे जाके पूरा ऐसे डिवाइड कर लेगा और यहाँ पे सीलोमेट होगा। यहाँ पे यहाँ पे एंडोडर्म है, गट है, एंडोडर्म है, मायोकोइल होता है वो रेयर मेसेनकाइम रीअरेंज टू फॉर्म द कोइलम। तो बेसिकली यहाँ पे मेसोडर्म में यहाँ पे एक जेली लाइक मटेरियल होता है, मेसोफाइल ऐसा कुछ करके बोलते हैं, जिसके अंदर अमोबोलार सेल समथिंग लाइक दैट होता है जो दूसरे सेल्स को प्रोड्यूस करता है। बट इसके अंदर ये मेसोडर्म की जगह ये रीअरेंज होके ये कोलम को बनाता है, ठीक है। एंड टाइप ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कोलम, एनिमल्स में कौन से होते हैं, तो ए कोलोमेट होता है, सूडो कोलोमेट होता है और कोइलो कोलोमेट। सूडो कोलोमेट बताया ना मैंने, ऐसा होता है पाउच लाइक, ठीक है। ये पाउच किसका, मेसोडर्म का पाउच होता है। तो यहाँ पे एंडोडर्म एक्टोडर्म को कोलोमेट टच कर रहा होता है, तो ये ट्रू कोलोमेट नहीं होता है। एंड देन वी हैव द एनिमल, मतलब ए कोलोमेट जिसमें कोलम ही नहीं होता है। ए कोलोमेट के अंदर नो कोलम बॉडी कैविटी फिल्ड विद द पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा क्या हो गया, प्लांट के टिश्यूज होते हैं। पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो किसी भी चीज में आगे जाके फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि स्टेम सेल होते हैं, ठीक है। पेरेन्काइमा सेल्स बेसिकली इन प्लांट के अंदर होते हैं, और एनिमल्स में हो सकता है, ठीक है। लिवर फ्लूक में भी होता है कि वो क्या करता है, बेसिकली होस्ट के बॉडी में जाता है और ये पेरेन्काइमा सेल्स को खाता है, अपने आप को डेवलप करता है एक्सेट्रा, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल। देन वी हैव द सूडो कोलोमेट, फॉल्स कोलोमेट होता है, नॉट लाइन बाय द मेसोडर्म, फिल्ड विद द फ्लूइड, प्रोवाइड शेप, प्रेशर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ये कोलोमेट करता है, इसका फंक्शन होता है। एग्जाम्पल राउंड वॉर्म हो गया, ठीक है। एंड देन वी हैव द कोलोमेट जिसके अंदर ट्रू कोलम होता है, मतलब उसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, कंप्लीटली लाइन बाय द मेसोडर्म, ठीक है। दो टाइप का होता है, शिज़ोसोलम एंड एंटोकोइली जो भी है। एग्जाम्पल फ्रॉग हो गया, एनिलिडा हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। ब्रिंग द लास्ट फॉर टूडेज लेक्चर विच इज एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ कोलोमेट। कोलोमेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सीलोम, बेसिकली वो प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन को फ्रॉम शॉक एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। जो अपने लंग्स है वहाँ पे भी है प्रोवाइड क्या हुआ ये स्पेस, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, रिलैक्स कर पाता है, अपने हार्ट के अंदर भी, हार्ट के बाहर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, रिलैक्स कर पाता है। देन इट एक्ट एज अ हाइड्रोस्केलेटन, सपोर्ट बॉडी, ठीक है, बॉडी को सपोर्ट करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, ये सब कोलम का काम होता है, सीलोम का। स्टोर गैमेट्स, हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। स्टोर गैमेट्स बोला तो फिर जो ओवेरी होता है उसके अंदर भी तो एम्प्टी कैविटी रहता है ना, जिसके अंदर स्टोर होता है, वो उसकी बात कर रहे हैं। इसकी वजह से हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। फिर गिव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द ग्रोथ, मूवमेंट एंड एवोल्यूशन। स्पेस दे रहा है आराम से, लाइक वी नीड अ प्राइवेट स्पेस इन आवर लाइफ, वैसे इट्स गिविंग अ स्पेस टू द ऑर्गन्स एक्सेट्रा, ओके। So thank you so much. This is what we have done today, and inshallah we are going to complete the whole syllabus, and do attach to this free course that I am giving. You are going to learn a lot of things, and next lecture is going to be more amazing. I will stay tuned and do watch my new videos that I am going to upload about this syllabus. So best of luck.